Hello guys, I am Dipankar Dash. I am 2016 batch TCS officer. So if you are in this channel after searching for this particular video, so let me give you a little bit of brief regarding what this channel is about. This channel is normally about Tripura Civil Service and Tripura Police Service TCS TPS exam specifically, where I give my point of view, some guidance regarding the exam, and also some tips regarding interview and some other ways of preparing for this exam, my point of view. But this video specially is made regarding another exam being conducted by TPSC, which is the Tripura Secretariat Service exam. I have gone through the syllabus, and also in 2019, the last time this Tripura Secretariat exam happened. So this is another exam that's gonna happen, that's gonna be taking place pretty soon. 15th January was the last day of applying for this exam. So those of you guys who have applied for this exam, and I think if you are already preparing for this exam, so my attempt here is just to give you an idea regarding or streamlining your study towards this exam and how to actually prepare yourself for this exam. That is my whole soul sort of approach in this video. So if you want me to give ideas and also my point of view, some sort of analysis, some sort of tips and tricks regarding other exams being conducted by TPSC, do write it in the comments below. Okay, so I'll try to give more ideas regarding various other exam. Now apart from that, again, if you are new to this channel, then do check out my other channel where me and my wife do some vlogging, lifestyle vlogging. So check out that also. The link will be in the description. The name of the channel is Cup Plate Vlogs, Cup Plate Vlogs. उसको भी देख लेना, link रहेगा description पे and also in the comments. Check that out also, and subscribe to that channel also would be really appreciated. Now let's go into the screen and see what this Tripura Secretariat Service exam is all about. Okay, so I am talking about this Tripura Secretariat Service. This is a Group C non-gazetted under GASA department. Okay, so this is the advertisement number 5 of 2021. So पहले vacancies देख लेते हैं. Vacancies for SC 11, ST 16, UR 23, and in this UR there is one post for ex-servicemen plus 2 reserved post for PWD. Okay, so this is the overall 50 vacancies are there. PH categories भी दिया हुआ है. तो उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चले जाते हैं. HS+2 और इक्विवेलेंट बोर्ड एग्ज़ाम with knowledge of typing in computer with accurate speed of 40 words per minute. ठीक है, along with basic computer knowledge. ये है क्राइटेरिया. एज क्राइटेरिया क्या है? 18 years, maximum 40 years as on 15/1/2022. अपर एज का रिलैक्सेशन है 5 years फॉर SC/ST PH कैंडिडेट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, सिलेबस एंड कंडीशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है, सिलेबस क्या है? इंग्लिश, देर आर बेसिकली 2 पेपर्स. रिटन एग्जाम 200 marks and type test is 50 marks. रिटन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, 100 marks each. और सिलेबस तो दिया हुआ ही है. इन इंग्लिश देर इज, इन इंग्लिश पेपर देर इज रिपोर्ट राइटिंग और ऐसे, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली, summary or précis writing. And next part is use of appropriate preposition, article, correction, sentences, use of common phrases, synonym, antonym. This is basically of 2 hours. Next paper is GK and current affairs. So GK में क्या है? The common experience, matters of common experience, current events, problem with special reference to India and world, helping development, curiosity, इंटरेस्ट एमंग द यूथ्स. ये वाला है एक चीज़. दिस आर फेयरली सिंपल इजी जीके. और देन देयर इज़ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन जियोग्राफी. आई विल टेल यू कि कहाँ से यू हैव टू कवर द जीके एंड ऑल्सो
the elementary knowledge of Indian history and geography, everything I'll tell you. So just stay with this video. ठीक है? अच्छा, लेट्स फर्स्ट सी थोड़ा सा डिटेल्स पे कि ये वैकेंसीज क्या है. ठीक है, वैकेंसीज. नाउ फर्स्ट थिंग इज दीज आर ऑल परमानेंट पोस्ट्स. परमानेंट पोस्ट है. नाउ एससी के लिए कितना है? एससी के लिए था 11, एसटी के लिए 16 एंड फॉर यूआर दिस इज 23. नाउ टोटल इज 50. नाउ 50 में थोड़ा सा डिवीजन क्या है? 50 इज कंप्राइज्ड ऑफ एक्चुअली 47 फॉर SC ST UR plus 1 is reserved for ex-servicemen plus 1 is reserved for 2 is reserved for person with disability. So this is the total breakup. Now total have 50. Now let's see how this merit list will be prepared. This is just to see or just to give you an idea regarding what is your competition क्या है. ठीक है. Now total 50 is the vacancy. Now number of candidates to be called for type test. Exam basically दो stage पे हो रहा है. First is the written and then is the type test. टाइप टेस्ट. ठीक है, दो स्टेज पे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. ठीक है. नाउ number of candidates category wise to be called for type test is 1:5, 5 times the number of vacancies. So if 50 is the vacancy, then for type test के लिए कितना होगा? For type test 5 times मतलब 250. Total 250 will be called for type test. That means in the written जितने भी लोग एग्ज़ाम देंगे, out of that 250 will be selected to give the type test, and out of that 250, 50 will be selected for आपका final merit list. So as you can see, your competition will be among this 250 that will be selected in the written. ठीक है. Now और आपको ये भी पता है कि the merit list कैसे बनाया जाएगा? Merit list will be based on total of this type test and written. Now already मैंने बोल दिया for SC and ST you get some relaxation. ठीक है. For SC and ST there is some relaxation of 6 months. If you pass the written, being an SC or ST candidate and you couldn't pass the type test, then and if your rank is of that means your total marks is in the higher part, then you get 6 months, an opportunity of 6 months within which you have to clear the computer type test. ठीक है. Now let's check out the exam phases. Exam कैसे होगा, कैसे phase में होगा? So you can see it is written and then there is type test, t-test. ठीक है. So पहले written का देख लेते हैं. एक चीज़ I want to clear, this whole exam and since the service is in secretariat, it's a very good service. Now the thing is, in secretariat you have to do a lot of work in English, or most works are in English. So they want to check what is your grasp in English language, at the same times how good accurately you can type in a computer. ठीक है.
सो इसके लिए एज यू कैन सी द रिटन एग्जाम इज ऑल्सो is in it has two papers of total 200 marks, 100 marks each. ठीक है, written is 200 marks and type test is 50 marks. Now 200 marks is divided into 100 marks each. 100 marks का दो पेपर है, one is English, another is GK plus current affairs. These are two papers, ठीक है, in the written. Now अभी इंग्लिश में क्या होता है, what happens in the English paper? इंग्लिश पेपर का सिलेबस क्या है थोड़ा देख लेते हैं. लेट आफ्टर दिस आई विल शो यू लास्ट ईयर्स 2019 में ये एग्ज़ाम हुआ था. 2019 में एग्ज़ाम पेपर कैसा था, कैसे टाइप का क्वेश्चन आया था, ऑल दिस थिंग्स आई विल डिस्कस. सो जस्ट स्टे एंड इफ़ यू लाइक, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ देन थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना and even press on the bell icon, so this will help me a lot. Now in English में क्या है, there is first report writing, और ऐसे. Now report writing छोटा होता है, ऐसे बड़ा होता है. This English paper one is combined of descriptive type conventional paper and OMR based MCQ type. Now इस पे written is 40 marks and OMR based is 60 marks, total 100. not ज़्यादा ही जीरो दे दिया, टोटल 100 मार्क्स. नाउ रिटर्न वाले पोर्शन में क्या है, रिपोर्ट राइटिंग और ऐसे. दूसरा आता है ट्रांसलेशन फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश, to translate from Bengali to English. So your knowledge of Bengali should be good enough so that you can translate it into English. It matters. Now then there is third portion is either summary or Prezi writing. So this 3 is only 40 marks. अब मार्क्स का ब्रेक डाउन विल सी इन द क्वेश्चन पेपर, उस पर देख लेंगे कितना मार्क्स है. देयर आई डिस्कस अबाउट कि कितने वर्ड का लिखना है रिपोर्ट राइटिंग, ऐसा सब चीज़ बता देंगे. एंड ऑल्सो समरी एंड प्रेसी, दैट ऑल थिंग आई विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. सो द रिटन पोर्शन इज़ 40. नाउ इस पे OMR वाला पोर्शन भी आता है. नाउ ये OMR वाला पोर्शन क्या है, OMR वाले पोर्शन में आता है वेरी इजी प्रीपोजिशंस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स, then there is correction, then there is use of common phrases, then there is synonym, antonym. It's very fairly easy thing. क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा. The last year 2019 question paper was very easy. If you practice every day you can easily crack this exam. Now ये हो गया आपका इंग्लिश पोर्शन 100 मार्क्स का. देन कम्स द क्या बोलते हैं जीके पोर्शन. जीके वाले में क्या है,
जीके वाले का भी देख लेते हैं। जीके वाले पोर्शन में इट्स टोटली OMR बेस्ड, पूरा ही OMR बेस्ड है, दैट मीन्स इट्स MCQ। इधर पे भी ये वाला पोर्शन, this is 60 marks, carries a lot of mark, preposition, article. So basically your knowledge of English, basically grammar in English, it's very important here. I would say कि the level of grammar is basically class 10 to class 11 level max, उससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन आता है नहीं, ठीक है। So if you practice a little, then you can easily आंसर ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली, ठीक है। जीके एंड करंट अफेयर्स में रिगार्डिंग जीके क्या है, सिंस दिस इज जीके एंड करंट अफेयर्स, बट मैंने देखा है कि त्रिपुरा के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल इन करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो जीके। तो जीके वाले पोर्शन में मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस, करंट इवेंट प्रॉब्लम जो भी है रिगार्डिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सब चीज़ें एक है जीके में। और करंट अफेयर्स में, सॉरी ये है करंट अफेयर्स में। और जीके में क्या है, जीके में स्पेशली इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन जियोग्राफी, ये दो पोर्शन है आपका जीके का, हिस्ट्री जियोग्राफी। स्पेशली इन दोनों के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, 100 मार्क्स का OMR बेस्ड MCQ टाइप। अब इन दोनों में क्लियर कर लिए, इफ यू क्लियर दिस एंड यू आर अमंग द 250 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, देन यू विल बी अलाउड टू अपेयर फॉर द 50 मार्क्स का टाइप टेस्ट। नाउ द थिंग इज हाउ इन टाइप टेस्ट में क्या है, आपका 40 वर्ड्स पर, क्या हो रहा है भाई, वर्ड्स पर मिनट। क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एक्यूरेट स्पीड, 40 वर्ड्स पर मिनट एक्यूरेटली मतलब करेक्टली टाइप करना है विदाउट मिस्टेक। So I don't know exactly how this is done. If any student or any other aspirant who has given the exam in 2019, please write below whether this is done through any website or any other software in which they measure the word speed and also accuracy, and how it is done, whether they give you something in paper and you have to write that thing in the computer. How it is done actually, if you guys can write it down in the comment, then I think it will be helpful for other aspirant who are gonna give this exam here. So please comment, है कि नहीं, कमेंट कर दो थोड़ा। नाउ अभी आते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ाई करना है, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर, लेट्स चेक आउट द 2019 क्वेश्चन राइट नाउ। हाँ, उसको कर लेते हैं। तो दिस इज़ द 2019 इंग्लिश वाला पेपर, ठीक है, दो पेपर मैं बोल रहा था। सो दिस इज़ द इंग्लिश वाला पेपर। सो आई विल बी लुकिंग इनटू दिस। टाइम अलाउड 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, ठीक है, 2 आवर्स का एग्ज़ाम है एंड मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स। नाउ पार्ट 1 इज़ MCQ पैटर्न, कंटेन्स 60 आइटम, 60 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, has 4 responses, MCQ है। You will choose the response you want to mark in the OMR आंसर शीट पे इसको मार्क करना है। If you feel that there is more than one correct response, mark the response which you consider the most appropriate, ठीक है, बट एक ही मार्क करना है। In any case choose only one response, एक से ज़्यादा करोगे it will be a wrong one। Question paper part 2 जो है, the conventional pattern contains 3 items which are to be answered in separate answer book. So in paper 1, the English paper, you will be given 2 types of thing, like one there will be OMR and then there will be the answer book, ठीक है। So एक part तो OMR पे करना है, another part you have to give it in answer book। एक part करके मत आ जाना, फिर आधा ही मार्क मिलेगा, ठीक है। Now part 1
बाई ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, द OMR शीट उस पर सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाना है. सो मेक श्योर कि एग्ज़ाम जाने से पहले यू हैव दिस ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. नाउ ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है. पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर फॉर पार्ट 1 ओनली. जो MCQ पोर्शन है दैट मीन्स द 60 मार्क वाला पोर्शन है, इट हैज़ पेनल्टी ऑल्सो, दैट इज 1/4 ऑफ द मार्क असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी गलत आंसर के लिए. Similarly, if a candidate gives more than one answer, it will be treated as wrong answer. Even if दो आंसर देने में एक अगर सही भी रहे, that will also be treated as wrong answer और same penalty मतलब 1/4 penalty हो जाएगा. Question is left blank and no answer is given, कुछ नहीं होगा penalty. So regarding the penalty, so it's like कि आपने आंसर दिया 1 मार्क है, if it is wrong then you get -0.25. ये 0.25 माइनस हो जाएगा. सो आंसर करने से पहले सोच लेना, जल्दबाजी में नहीं करना. यू गेट एनफ टाइम फॉर दिस. नाउ लेट्स सी पहले 60 क्वेश्चन कैसे टाइप के होते हैं. जो OMR वाले इंग्लिश के 1 to 16 एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स प्रीपोजिशन लगाने हैं. ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, ऐसे टाइप के AND ये सब लगाना है. AND सो बेसिकली AND ये सब टाइप ही है. सारे AN इन प्रोपोजिशन वो सब लगाना है. वी शैल फिनिश द वर्क इन टाइम. वी शैल फिनिश द वर्क विद इन अ वीक. ये हो सकता है, ये नहीं होगा. इट वॉज raining. It has been raining since morning. ठीक है. सो इट्स वेरी ईजी. आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो. यू गेट ए गुड जॉब ऑल्सो इन दिस. नाउ नेक्स्ट कैसे टाइप के आते हैं. नेक्स्ट टाइप के आते हैं चूज़ द करेक्ट वन अमंग द फॉलोइंग. जो करेक्शन में पहले बता रहा था, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस. सो पहला चला गया तुम्हारा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस आर्टिकल. पहला पोर्शन था प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल, ये पहला वाला चला गया. ना दूसरा वाला इधर आ गया करेक्शन. जो सिलेबस में दिया है दे आर फॉलोइंग दिस थिंग ओनली. सो स्टिक टू द सिलेबस. सिलेबस को एक दो बार स्टडी कर लो, देन यू कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम. और करेक्शन में क्या है, वेरी इजी. चूज़ द करेक्ट वन. इनमें से जो भी करेक्ट है उसको चूज़ करना है. इफ़ नन ऑफ देम आर करेक्ट देन यू हैव, इफ़ नन ऑफ देम आर करेक्ट देन यू हैव टू चूज़ नन ऑफ द अबव. बट अभी देख लेते हैं क्या है. माई सिस्टर हैज़ ए गुड एपेटाइट ऑन आइसक्रीम, ये तो गलत है. माई सिस्टर हैज़ ए गुड एपेटाइट फॉर आइसक्रीम, मे बी. माई सिस्टर हैज़ ए गुड एपेटाइट टू आइसक्रीम, ये भी गलत है. माई सिस्टर हैज़ ए गुड एपेटाइट फॉर आइसक्रीम्स. आइसक्रीम्स हाँ ठीक है. सो एज पर माई थिंकिंग आई थिंक बी इज़ द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से. ठीक है. तो दिस इज़ हाउ इट इज़. इंडियंस हैव नो लाइकिंग फॉर एनिमल. इंडियंस हैव नो लाइकिंग फॉर, अच्छा, 2 एनिमल्स, 4 एनिमल्स. सो बेसिकली इधर पे भी करेक्शन में भी यू सी दे आर गिविंग यू डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब सेम सेंटेंस where grammatically because of preposition articles there is something wrong in it. ठीक है. so if you master preposition articles तुम्हारा एक दो काम एक साथ हो जाएगा. so next किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉमन फ्रेजेस है कि नहीं. यूज़ ऑफ कॉमन फ्रेजेस दैट इज इन द सिलेबस ऑल्सो. कॉमन फ्रेजेस, ठीक है. अभी तो ये कॉमन फ्रेजेस वाला है. ही इज़ वेल ऑफ दिस डेज, इसका मतलब क्या है, ही इज़ रिच, सैड, पुअर, हैप्पी. वेल ऑफ इज़ नॉर्मली इट गोज विथ रिच. आई एम इन ए फिक्स
and fail to understand whether I should help him or not. I mean, a fix matlab confused. He is confused. I am dead against the practice of dowry. Dead against क्या होता है? It's in the negative. It's in the negative thing. Dead against, strongly opposed to. This is the correct answer. नेक्स्ट पार्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम. सिनोनिम एंटोनिम मैंने बताया था. लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज सिनोनिम एंटोनिम. कपल क्या होता है? कपल इज ए पेयर. हाँ, ये देख लेना सिनोनिम चाहिए कि एंटोनिम चाहिए. सिनोनिम चाहिए. एनिमी क्या होता है? एनिमी इज फो. नाउ लुक एट एंटोनिम. बैरन. बैरन इज empty barren land. You can say fertile land. फ्रेश उसका उल्टा क्या होगा? स्टेल. लीनियंट का उल्टा होगा स्ट्रिक्ट, बिकॉज लीनियंट इज ईजी सॉफ्ट ऐसा हो सकता है. ओरल इसका उल्टा होगा रिटन. नाउ लेट्स लुक इनटू द कन्वेंशनल में क्या आता है. ऐसे वाले पोर्शन में क्या होता है? 300 वर्ड्स आपको दे दिया है. सो ऐसे इन 300 वर्ड का ऐसे आपको लिखना है. In any one of the dangers of indiscriminate use of plastic, global warming, future of tourism, democracy. Fairly easy topic है, common topic में से ही आता है. और रिपोर्ट 300 वर्ड्स में, दोनों ही 300. रिपोर्ट भी 300 वर्ड, ऐसे भी 300 वर्ड. ठीक है, रिपोर्ट भी लिख सकते हो. स्ट्रीट एक्सीडेंट. सो बेसिकली रिपोर्ट इज रिगार्डिंग कि न्यूज़पेपर में जैसे रिपोर्ट होते हैं वैसा टाइप के न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग के टाइप लिखना है इन 300 वर्ड्स. सो यू कैन चूज इधर ऐसे लिखना है या फिर रिपोर्ट लिखना है. नाउ समरी इज नॉर्मली कितना होता है? आई थिंक 1/3 और समथिंग में आ जाएगा. हाँ, जो भी वर्ड काउंट है यू जस्ट इन ए ब्रीफ यू मेक द वर्ड काउंट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 इंटू 14. So it gives you 8. 238. 238 का 1/3 कर दो. अराउंड 70-74. सो अराउंड इसका 70 to 80 वर्ड्स पे यू मेक द समरी. इसका छोटा समरी कर दोगे 70 to 70. सो ये चीज़ देख लेना. तुम्हारा क्वेश्चन देखते ही यू फाइंड आउट व्हाट इज़ द टोटल वर्ड काउंट और उसको 1/3 कर देना. उसके हिसाब से अपना बना देना इसका समरी. ठीक है. नाउ प्रेसी में क्या होता है? 8+2 क्यों है? 8+2 बिकॉज 2 इज़ फॉर द टाइटल. प्रेसी में टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रेसी में 2 मार्क्स है टाइटल का, 8 मार्क्स है प्रेसी का. सो प्रेसी इज़ सिमिलर टू तुम्हारा क्या बोलते हैं समरी, बट इट्स मोर कंसाइज देन अ समरी. तो सिमिलरली वर्ड काउंट करके इसको छोटा करना है. और ये फाइनली आता है तुम्हारा फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने का. फेयरली इजी पैसेज रहेगा. सो इसमें कुछ बोलने का तो है नहीं. इफ़ यू हैव टू नो बंगाली ऑल्सो एंड ऑल्सो কারেক্ট ইংলিশ ফর দিস. ফটোটা কী করে যে মনোজদের বাসায় এলো তা কেউ জানে না. হাউ দ্য ফটো ল্যান্ডেড ইন মনোজেস হাউস nobody knows. This is more colloquial language. This will be like nobody knows how the photo landed in Manoj's house. ठीक है, ये हो गया पहला लाइन. तो ऐसा टाइप से यू कैन राइट द आंसर. सो दिस इज़ योर इंग्लिश पेपर. वेरी इजी है कि नहीं? नाउ कहाँ से वो इंग्लिश वाला कहाँ से करना है?
रेन एंड मार्टिन, यू कैन गो फॉर रेन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन खरीद लो, उससे प्रैक्टिस कर लो। इट इज़ ए फेयरली, क्या बोलते हैं, इट्स ए कॉमन बुक एंड वेरी स्टैंडर्ड बुक। रेन एंड मार्टिन का लाल कलर का बुक आता है, उसको ख़रीद लो और उससे आर्टिकल्स प्रीपोजिशन पढ़ लो एंड कोई प्रैक्टिस पेपर हो है तो वो कर लो। यू कैन ईजीली क्रैक द इंग्लिश पार्ट। ना अभी जीके एंड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जीके करंट अफेयर्स वाला पेपर 2 घंटा 2 आवर्स 100 मार्क्स, ठीक है। अभी क्या हो गया, द होल एग्ज़ाम इज़ इन क्या बोलते हैं एमसीक्यू में ही है। सो इट इज़ ओएमआर बेस्ड आंसर शीट, ब्लैक बॉल पॉइंट आपको लाना है मस्ट। यू हैव ओनली 1 करेक्ट रेस्पॉन्स, ऑल आइटम्स कैरी इक्वल मार्क। सो और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर भी है, सो दिस इज़ 1/4, सो 0.25 नेगेटिव है, इसको मान के चलना। आपने अगर 4 गलत कर दिया मतलब -1 हो जाएगा, ओके। अभी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। इस पे क्या है, एक तो था मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस, करंट इवेंट, प्रॉब्लम विथ रेफरेंस टू इंडिया एंड वर्ल्ड, ये था एक करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। एंड जीके पोर्शन वाज रिगार्डिंग इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। इन दोनों को लेके है आपका जीके ना। पहला वाला पोर्शन देख लेते हैं क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब जियोग्राफी वाला पोर्शन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू कौन कौन से स्टेट, लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया सब जियोग्राफी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लार्जेस्ट बॉर्डर लेंथ विथ इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड आर सब मच पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज कॉल्ड, सारे हैं जियोग्राफी वाले, इंडियन जियोग्राफी वाले। फेमस हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पे है, तो ये चले गए आपके जियोग्राफी वाले, देख लो। शेल गैस वाज इन न्यूज़ इन 2011 2012, उस टाइम पे शेल गैस काफ़ी न्यूज़ पे था, ठीक है। एशियाज़ लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, बोराक वैली इन असम, सो नॉर्थ ईस्ट एंड इवन रिगार्डिंग त्रिपुरा ऑल्सो क्वेश्चन कम्स। दिस इज ऑल जियोग्राफी पोर्शन। स्पेशली आप, मैं इधर देख रहा हूँ कि यू हैव टू नो द क्या बोलते हैं मैप, जानना ज़रूरी है। यू हैव टू नो द मैप, द जियोग्राफिकल लोकेशंस पूरे स्टेट का एंड द कंट्री ऑल्सो, ठीक है। कंट्री तो जानना ही है। दैट इंक्लूड्स द बॉर्डर, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, मतलब मैं मैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बॉर्डर, प्लेसेस, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, स्टेट बाउंड्रीज एंड रिवर्स, माउंटेन्स, ये सब चीज़ें स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए। ये वाला रिवर्स जब पता चल गया, उस पर डैम तो पता होना ही है। माउंटेन्स, देन हिल रेंजेस, वो भी पता होना है। ये सब चीज़ें पता होना है, ठीक है। रिगार्डिंग तो मैप, यू हैव टू स्टडी द मैप। इधर आ गया त्रिपुरा, स्टेट ऑफ त्रिपुरा मर्ज्ड विद इंडियन टेरिटरी कब, हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ त्रिपुरा हैज़ इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश, उसका लेंथ क्या है। अगरतला कैपिटल सिटी ऑफ त्रिपुरा कनेक्टेड टू द कंट्रीज रेलवे नेटवर्क इन द ईयर, कब कनेक्ट हुआ। सो त्रिपुरा स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आते हैं। सो ये छोटे मोटे जो भी है इसको प्रिपेयर कर लेना। नेशनल पंचायत डे राज, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसेंटली लॉन्च श्रेया स्कीम, एक्चुअली आई डोंट ऑल्सो नो अबाउट श्रेया स्कीम, उसके बारे में अगर पता है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट, व्हाट इज श्रेया स्कीम। दिस आर विलेज बेस्ट फीचर, तो अवार्ड भी देखना है भाई, अवार्ड भी देखना है। गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स, स्पोर्ट्स वाला पोर्शन भी देखना है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, फिर क्या है ये मिसाइल मतलब डिफेंस वाला पोर्शन भी देखना है।
ये अवार्ड तो भरा हुआ है। सो स्पेशली अवार्ड्स देखने हैं भाई, अवार्ड्स देखने हैं, डे भी देखना है, और क्या है, स्पोर्ट्स वाला ईरानी ट्रॉफ़ी किसने जीता, कतार ओपन सिंगल्स चैम्पियन, ये सब चीज़ें आते हैं। मेरे टाइम एरो एक्सपो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो हिस्ट्री से आ गया। ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन इंडिया, विच वेदा, ये तो कल्चर हेरिटेज वाला पोर्शन भी आ गया। वही काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अजातशत्रु वाज सन ऑफ, किसका सन है, गौतम बुद्ध। बुद्ध से रिलेटेड, बुद्धिज़्म जैनिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इन मोस्ट, मतलब जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इज़ ए प्रेफर्ड क्वेश्चन एरिया सबके लिए। तो वट एवर क्वेश्चन पेपर इज़ देयर, ये तो आप लोगों को TPSC के वेबसाइट पे मिल जाएगा इन देयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर सेक्शन पे मिल जाएगा, वहाँ पे सेक्रेटरीट करके सर्च कर लेना, मिल जाएगा। अगर नहीं मिला देन ऑल द क्वेश्चन पेपर नोटिफिकेशन एवरीथिंग विल बी देयर इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वीडियो, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन पे, हाँ डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, वहाँ पे मिल जाएगा सब कुछ, तो वहाँ से देख लेना। नाउ अभी मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कहाँ से आप GK करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ रिगार्डिंग GK, आप GK टुडे के वेबसाइट पे चले जाओ, GK टुडे हेयर, इसके वेबसाइट पे यू कैन इजीली गेट ऑल द क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स एंड GK रिलेटेड क्वेश्चन इन ऑल्सो क्विज पैटर्न। तो इस पे जैसे डेली करंट अफेयर्स के क्विज़ होते हैं, सो इसको खोलते हैं, एक डेली करंट अफेयर्स के क्विज़ होते हैं। विच सिटी हैज़ द मोस्ट ट्रैफिक कंजेशन, पता नहीं कौन सा है इंडेक्स है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER इज़ पब्लिश्ड बाई विच इंस्टीट्यूशन, आप इधर देख आपको पता है तो आप इधर से देख सकते हो और आंसर इधर पे बता देगा विथ थोड़ा सा डिटेल्स। तो ये हर दिन क्वेश्चन देता है, अराउंड 5 क्वेश्चन देता है रिगार्डिंग उस दिन का करंट अफेयर्स। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इफ़ यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दिस थिंग्स। ये थोड़े आप आर्काइव में चले जाना, आर्काइव में जाके पुराने एटलीस्ट 2-3 महीने का तो प्रैक्टिस कर ही लेना। मान लो कि यू टेक एटलीस्ट 5 मंथ्स ओल्ड, 5 महीने का एटलीस्ट करंट अफेयर्स तो कर ही लेना टू अपेयर इन दिस एग्ज़ाम। इस वाले वेबसाइट से कर लेना, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर दिस एग्ज़ाम एंड एनी अदर एग्ज़ाम जो TPSC कंडक्ट करती है। ये लोग मंथली आर्काइव भी बनाते हैं, ठीक है, मंथली आर्काइव भी बनाते हैं, फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन स्टडी। और कैटेगरी वाइज भी होता है, जैसे कि तुमने देख लिया था स्पोर्ट्स वाला काफ़ी आता है, तो स्पोर्ट्स वाला भी देख सकते हो इधर से। एंड अवार्ड्स, हाँ अवार्ड्स भी इस पर अवेलेबल है, अवार्ड्स वाला पोर्शन भी इधर से कवर करना। जितने भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स में है सब इस पे कंपाइल पेज बाय पेज, पेज 1 पेज 2 ऐसे करके, ये तो एटलीस्ट पूरे कर लेना। तो इधर से तुम लोगों का करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत तो हो जाएगा कवर, ठीक है। ये गया तुम्हारा GK एंड करंट अफेयर्स। इसको छोड़ के रिगार्डिंग द GK एंड करंट अफेयर्स, रिगार्डिंग GK करंट अफेयर्स, नाउ करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने बता दिया, दिस इज़ GK टुडे वेबसाइट जो है उसको फॉलो करना है। नाउ ये करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, करंट अफेयर्स एंड GK ऑल्सो मिक्स्ड। नाउ GK स्पेसिफिक जो स्टेटिक वाला पोर्शन है GK का, मतलब इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी वाला पोर्शन जो है, इसके लिए आई वुड से कि NCERT उठाओ, NCERT क्लास 8 से 12 तक,
क्लास 8 to 12 प्लीज़ कवर क्लास 8 से क्लास 12 तक you have to cover regarding geography and also history. Geography and history क्लास 8 to क्लास 12 अगर NCERT का कवर कर लिया then you don't need anything else regarding this GK का स्टैटिक वाला पोर्शन तुम्हारा हो जाएगा इसमें से। और त्रिपुरा का पोर्शन जैसे टाइप के क्वेश्चन देख रहे हो ऑल दिस थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम क्या बोलते हैं, मैं एक PDF और एक भी शेयर कर दूंगा, उसमें बेसिक्स है त्रिपुरा के बारे में, वो कवर कर लेना। आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। और उसको छोड़ के खुद से थोड़े बहुत नोट्स बनाने होंगे, तो आई थिंक उससे ओवरऑल कवर हो जाएगा। नाउ लेट्स लुक इनटू कि तुम्हारा टाइप टेस्ट कैसे करोगे। एटलीस्ट टाइप टेस्ट के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस टाइपिंग ना। तो अगर कंप्यूटर नहीं है तो वेबसाइट पे जाओ। क्या हो गया इसमें, सो दिस इज़ द वेबसाइट typing.com। typing.com में जाके you can easily practice टाइपिंग, जिस पे आप अपना स्पीड भी चेक कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन लर्न हाउ टू डू दैट। सो दिन में एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा तो दे दो इस पर। अगर किसी कैफ़े में आधा घंटा 1 घंटा दे दो, अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, और अगर घर पे है तो जस्ट विजिट दिस वेबसाइट एंड गो फॉर टाइप टेस्टिंग। जैसे बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस्ड है। बिगिनर से चालू कर देना, दे हैव सो मेनी थिंग्स यू कैन चेक हियर। स्टार्ट कर दो। पता नहीं इनका क्या है, स्किप कर सकते हैं क्या? हाँ, कर दिया। तो ये लोग दिखाते हैं कैसे करना है यूज़ इसको, उंगली कहाँ पे रखना है, ये सब चीज़ दिखाते हैं। तो ऐसे कीबोर्ड उठाओ और टाइप करो एंड यू विल गेट योर बेस्ट रिज़ल्ट। ठीक है। सो मैं जस्ट सजेशन है, और दूसरे भी वेबसाइट्स है, दूसरे भी सॉफ्टवेयर्स है। टाइपिंग मास्टर करके एक सॉफ्टवेयर पुराना होता था, आई थिंक दैट ऑल्सो विल वर्क। तो जो मैं बोल रहा था, दिस इज़ typing.com। इस वाले वेबसाइट पे अपने जीमेल वीमेल से लॉगिन कर लेना एंड देन यू कैन इजीली प्रैक्टिस योर टाइपिंग। सो दैट्स इट। आई थिंक ओवरऑल इसको अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा फिर से रिफ़्रेश कर देता हूँ। तुम्हारा एक तो है इंग्लिश वाला पोर्शन एंड दूसरा है जीके एंड करंट अफेयर्स। ठीक है। नाउ इंग्लिश वाले पोर्शन में रिपोर्ट राइटिंग ऐसे लिखना है, दैट इज़ इन 300 वर्ड्स। ट्रांसलेशन करना है बंगाली टू इंग्लिश ओनली, समरी एंड प्रीसी राइटिंग करना है। प्रीसी राइटिंग में टाइटल भी देना होता है। ठीक है। टाइटल के लिए 2 मार्क्स रहते हैं। सो दिस इज़ द इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन का कन्वेंशनल वाला पार्ट, दैट मीन्स ओनली 40 मार्क्स जहाँ से आता है, एंड 60 मार्क्स आता है तुम्हारा ग्रामर रिलेटेड, दैट इज़ प्रीपोजिशन, आर्टिकल, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, कॉमन फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब चीज़ें यूज़ कैसे करोगे उसके ऊपर तुम्हारा 60 मार्क्स का MCQ रहता है, दैट इज़ इन द OMR शीट यू हैव टू फिल। ठीक है। उसके लिए आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। सो इसको मत भूलना। एंड देन योर जीके करंट अफेयर्स, ये पूरा ही OMR बेस्ड होता है, 100 मार्क्स का। ठीक है। 2 घंटे का एग्ज़ाम है जीके एंड करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने बोल ही दिया। करंट अफेयर्स के लिए यू कैन विज़िट GK टुडे वेबसाइट। और जीके का जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए, सो बेसिकली जीके टुडे में तुम्हारा करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा, एट द सेम टाइम जीके का भी कवर हो जाएगा।
बट जीके में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है, उस पर उसको तुम NCERT क्लास 8 टू क्लास 12 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी वाले बुक्स जो होते हैं, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी वाले बुक्स, उसको पढ़ लेना है। उसको पढ़ लोगे एटलीस्ट यू विल कवर द स्टैटिक वाला पोर्शन ऑल्सो। एंड देन इफ़ यू क्लियर दिस, देन प्लीज़ typing.com में चल जाओ, वहाँ पे फ्री में आपको टाइपिंग कैसे करना है along with आपका स्पीड, आपका एक्यूरेसी सब दिखा देगा। तो उसको भी यूज़ करके यू कैन ईजीली प्रैक्टिस योर टाइपिंग। सो थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। एंड इफ़ यू वांट कि ऐसे टाइप के दूसरे एग्ज़ाम अपार्ट फ्रॉम द TCS TPS एग्ज़ाम, बिकॉज इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ, तो मैं सोचा कि दूसरा जो एग्ज़ाम TPSC कंडक्ट कर रही है उसको लेके थोड़ा वीडियो बना दे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट रिगार्डिंग दिस त्रिपुरा सेक्रेटरियल सर्विस का जो एग्ज़ाम है उसका थोड़ा सा एनालिसिस मैंने कर दिया है। इफ़ यू वांट कि दूसरे एग्ज़ाम जो कंडक्ट कर रही है TPSC उसका भी करें, देन राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो रिगार्डिंग कौन सा एग्ज़ाम का कर रहे हैं तो करना है, तो आई विल ट्राई टू डू दैट ऑल्सो। सो आई थिंक अगर इतना तक आ गए हो तो थोड़ा सा एक सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फिर लाइक कर दो। एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट माय अदर चैनल ऑल्सो, वेयर मी एंड माय वाइफ ऑल्सो डू सम daily vlogging, so that is called Cupplate vlogs, so that is called Cupplate vlogs। so वो हम दो एक साथ चलाते हैं। so उसको भी, उसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, इवन इन द कमेंट्स, सो चेक दैट ऑल्सो। एंड जाओ वो भी देखो, उसमें भी बहुत सारे वीडियोस है, चेक दैट आउट ऑल्सो। तो उस पर भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देने से दैट विल बी वेरी गुड। हाँ ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट गाइस, यहाँ पे ख़त्म करते हैं ये वाला वीडियो। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन दिस whole video। I'll try to make more such videos। चलो दैट्स इट गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।